Good morning friends. Today we are going to start second chapter of bio, that is sexual reproduction in flowering plants. So taking its introduction, first of all we will discuss about flower and its parts. It is the basic introduction of this chapter which we have already studied in our previous classes also. So I will discuss about a flower and its parts through diagram. As you can see, here is the diagram of a flower where you can see all the parts, that is petal, which is the colorful part of a flower, anther, male reproductive part, filament, this slender part is known as filament, and anther and filament combinedly forms a stamen, that is mainly the male reproductive organ of a flower. Here this one is the female reproductive part and it consists of stigma, style, this one is style, and ovary. These three subparts combinedly forms a female reproductive part known as pistil. Next, sepal. Sepal are those parts which encloses a developing bud, means these are the outer part of a flower in which developing bud is enclosed. And the ovary of the female reproductive system consists of ovules which may be vary from flower to flower. This one is the stem, and this organ which is thickened is known as thalamus. It is nothing, it is also stem, pedicel, but it has a different characteristic that it is thickened over here, and from thalamus all the organs of a flower starts to grow. So this was our basic introduction of the chapter about a flower and its parts. Now we are going to discuss about the structure of anther, which is the male reproductive part, as I told you earlier. So let's start. Anther, it is a bilobed structure with each lobe having two theca. Anther is a bilobed structure having two lobes. Bilobed means, here bilobed means two lobes, and it is a bilobed structure means it has two lobes with each lobe having two theca, means in one lobe there are two theca. Therefore it is called डाइथीशियस. इसीलिए इसे हम डाइथीशियस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हर लोब के अंदर दो थीका होते हैं. इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट 4 कॉर्नर्स. नाउ taking its diagram, here is the TS of a young anther, means it is a transverse section of an anther. Here you can see these are the two lobes of the anther, and in each lobe there are two theca. These are theca, and there are 4 microsporangium which are located at each corner. Means one anther consists 4 microsporangium. Now microsporangium is surrounded by 4 wall layers. The outer 3 layers are epidermis, endothecium, and middle layer. These 3 outer layers are surrounding microsporangium. So function of these 3 layers is, these 3 layers are protective in function. Mainly इनका function protection का होता है कि pollen grain को protection provide करे. Also ये help करती है dehiscence of anther to release the pollen. अब जब anther में pollen grains बनते हैं तो ये उन pollen grains को release कराने में भी help करती है anther की dehiscence के अंदर. The innermost fourth layer is called tapetum. जो सबसे अंदर फोर्थ लेयर होती है उसे हम टैपेटम कहते हैं.
और टैपेटम का फंक्शन है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, यही इसका मेन फंक्शन होता है। और ये कहता है कि जो सेल्स हैं टैपेटम की, उनके अंदर उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियाई हमें देखने को मिल सकता है। अब स्ट्रक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में हम देखें। यहाँ एंथर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर को हमने एपिडर्मिस शो किया हुआ है, इसके बाद एंडोथीशियम एंड आफ्टर दैट दिस वन मिडल लेयर। ये तीनों लेयर प्रोटेक्टिव फंक्शन की है और डायहाइसेंस कराने में हेल्प करती है एंथर का। नेक्स्ट जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, इस लेयर को हमने नाम दिया है टैपेटम। और टैपेटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। जो न्यूट्रिशन टैपेटम लेयर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इनकी जो सेल्स हैं उसका इस वाले सेक्शन का हमने एक और मैग्नीफाइड व्यू देखा है। उसमें आउटर कवरिंग की जो सेल्स हैं वो एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, देन आफ्टर दैट मिडल लेयर और ये ग्रीन वाली टैपेटम जिसके अंदर आपको मोर देन वन न्यूक्लियाई भी देखने को मिल सकता है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, हम अभी भी पढ़ के आ रहे हैं। और इनके अंदर जो स्पोरोजेनिस टिश्यू था उसके अंदर बनती हैं हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर्स को गिव राइज कर। नाउ नेक्स्ट ये कहता है कि दीज माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल लेयर्स एनक्लोज अ मास ऑफ स्पोरोजेनिस टिश्यू। इन माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल लेयर्स के अंदर स्पोरोजेनिस टिश्यू का एक मास एनक्लोज होता है और इस स्पोरोजेनिस टिश्यू की हर एक सेल मियोसिस के अंडर को जाती है और 4 सेल्स बनाती है। जो चारों की चारों सेल्स जो हैं वो टेट्राड के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड में एसोसिएटेड रहती है। मींस सभी की सभी सेल्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड रहती हैं एक टेट्राड के अंदर। सभी के सभी जो माइक्रोस्पोर सेल्स हैं वो एक टेट्राड की फॉर्म में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और इन्हीं को हर एक को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। लेटर these cells develop into pollen grains representing male gametophyte। ये फिर बाद में आगे चलकर डेवलपमेंट होगी इनकी और डेवलपमेंट होने के बाद ये पोलन ग्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, PMC। पोलन मदर सेल को हम क्या कहते हैं, PMC भी कहते हैं। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। अब ये PMC क्या होती है, स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल को हम PMC बोलते हैं, पोलन मदर सेल बोलते हैं। थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब ये कि एक पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस के अंडर को जाती है तो वो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करती है और इस प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नाम देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। These microspores are arranged as tetrad. When the anther mature and dehydrate, they dissociate from each other and develop into pollen grains. ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ टेट्राड की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। मीन्स 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के अंदर और वो सभी के सभी माइक्रोस्पोर्स एक टेट्राड इस टाइप के स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक पोलन ग्रेन के अंदर ये डेवलपमेंट शो करते हैं। मतलब ये जो एक माइक्रोस्पोर है हमारे पास, ये आगे चल कर के एक पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगा, एक पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगा और वो पोलन ग्रेन
रिलीज किया जाएगा पोलन सैक के द्वारा। कब? जब एंथर का डिहाइसेंस होगा। अब हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन ही होता है। तो आउटर कवरिंग ऑफ अ मैच्योर पोलन ग्रेन, एक मैच्योर पोलन ग्रेन की जो बाहर की कवरिंग होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज एक्साइन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट कुछ नहीं है, पोलन ग्रेन ही है। ये कहता है कि आउटर कवरिंग ऑफ अ मैच्योर पोलन ग्रेन, जब एक पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसमें 2 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है एक्साइन, फर्स्ट वन इज एक्साइन। इट इज़ द आउटर हार्ड लेयर, ये बाहर की हार्ड लेयर होती है, मेड अप ऑफ मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये कहता है कि बाहर की जो लेयर है वो बहुत हार्ड होती है और वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है, जिस मटेरियल का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन उसका नाम है। दिस इनेबल्स पोलन ग्रेन्स टू रेसिस्ट हाई टेम्परेचर एंड एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पोलन ग्रेन्स को हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड के एनवायरनमेंट में भी रेसिस्ट करने में इसी का जो है इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नो एंजाइम इज येट नॉन टू डिग्रेड इट, बिकॉज ऑफ विच पोलन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। और आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर जाए या डिसॉल्व कर दे। और यही कारण है कि पोलन्स जो हैं वो फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व्ड रह सकते हैं। The reasons on exine where sporopollenin is absent, वो रीज़न एक्साइन का जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उसे हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं। और जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर। जर्म पोर जो है इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर रीच करेगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो इसके अंदर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और वो पोलन ट्यूब यहीं से जर्मिनेट होकर बाहर आउटग्रोथ शो करती है। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को तो हम डिसॉल्व कर नहीं सकते और इसके रहते पोलन ट्यूब का बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। तो उसी के लिए पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए हमारे पास जर्म पोर जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। अगर डायग्राम में देखें तो जो बाहर की कवरिंग आप देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं एक्साइन का। ये आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है जो स्पोरोपोलेनिन से बनी है और कोई भी एंजाइम इसे आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया गया जो इसे डिसॉल्व कर दे या डाइजेस्ट कर दे। दूसरा इसलिए हमने पढ़ा जर्म पोर के बारे में। जर्म पोर वो स्पेस होता है, वो गैप होता है जहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, यानी जहाँ पर एक्साइन लेयर के ऊपर जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है वहाँ पर जो एरिया है उसे हम क्या नाम देते हैं? जर्म पोर का नाम देते हैं। जर्म पोर का फंक्शन कुछ भी नहीं है। अगर डायग्राम में देखें तो जो बाहर की कवरिंग आप देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं एक्साइन का। ये आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है जो स्पोरोपोलेनिन से बनी है और कोई भी एंजाइम इसे आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया गया जो इसे डिसॉल्व कर दे या डाइजेस्ट कर दे। दूसरा इसलिए हमने पढ़ा जर्म पोर के बारे में। जर्म पोर वो स्पेस होता है, वो गैप होता है जहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, यानी जहाँ पर एक्साइन लेयर के ऊपर जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है वहाँ पर जो एरिया है उसे हम क्या नाम देते हैं? जर्म पोर का नाम देते हैं। जर्म पोर का फंक्शन कुछ भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर इज इंटाइन। इंटाइन जो है ये इनर थिन लेयर है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है। ये अंदर की थिन लेयर है जो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है। दूसरा ये लेयर जो है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस लेयर है, यानी इसमें एक्साइन की तरह कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक्साइन की तरह ये कहीं एब्सेंट हो, जैसे एक्साइन यहाँ एब्सेंट है जर्म पोर के स्पेसिस पे। ये सेलुलोज और पैक्टिन इन 2 केमिकल से बनी है और कॉन्टिन्यूस लेयर है। ये रेड वाली जो लेयर आप देख रहे हैं एक्साइन के अंदर,
एक्साइन के बिल्कुल नीचे, इसे हम नाम देते हैं इंटाइन का। अ मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स। अब जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो इसके पास 2 सेल्स आ जाती हैं। पहली सेल को हम क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव सेल, और दूसरी है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के बारे में पढ़ें तो ये लेयर, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये बहुत ही लार्ज होती है दूसरी वाली सेल के कंपैरिजन में। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये वाली जो सेल है ये दूसरी सेल के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज है। और एंड पोसेसेस वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। वैक्यूलेटेड, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो वैक्यूलेटेड होता है, विच इज़ रिच इन रिजर्व फूड। वैक्यूल आपने पहले पढ़ा होगा +1 में उसके बारे में। तो वैक्यूलेटेड उसका साइटोप्लाज्म होता है और ये रिच होता है साइटोप्लाज्म किसके अंदर? फूड में। द न्यूक्लियस इज ऑल्सो लार्ज एंड इरेगुलर, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी बड़ा होता है और इरेगुलर होता है। सेकेंड जो सेल हमने देखी थी जनरेटिव सेल, दिस वन, इट इज़ स्मॉलर एंड यूजुअली स्पिंडल शेप्ड। ये छोटी है और अक्सर इसकी शेप जो है वो स्पिंडल है। स्पिंडल शेप कैसी होती है? एक लीफ लाइक जो शेप होती है वो होती है स्पिंडल शेप, दिस वन। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोमिनेंट होता है। फर्दर दिस सेल फॉर्म 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। ये जो सेल है ये 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। नॉन मोटाइल का मतलब क्या हुआ? नॉन मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? नो मूवमेंट। मेल गैमेट्स बाय अंडरगोइंग माइटोसिस। अब जो सेल है जनरेटिव सेल ये माइटोसिस के अंडर को जाती है और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन करती है प्रायर टू रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स। और इनकी प्रोडक्शन कब हो जाती है? पोलन ग्रेन्स के रिलीज करने से पहले, प्रायर टू रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को रिलीज करने से पहले ही ये माइटोसिस के अंडर को जाएगी और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को, मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है किसके द्वारा? जनरेटिव सेल से। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। Pollen grains shed at 2-celled stage in 60% of angiosperm, while they shed at 3-celled stage in 40% of angiosperm. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। तो पोलन ग्रेन्स, ये कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं, यानी झड़ जाते हैं, या कहें कि स्टिग्मा पर रीच कर जाते हैं। मीन्स पोलन सेक्स से ये जो है रिलीज कर दिए जाते हैं किस स्टेज पर? 2-सेल्ड स्टेज पर। जब इसके अंदर 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है उस स्टेज पर आने के बाद ये शेड ऑफ हो जाते हैं 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर। मतलब 60% जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें ये 2-सेल्ड स्टेज पर ही शेड हो जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए 40% फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर ये 3-सेल्ड स्टेज पर, जो 3-सेल्ड स्टेज है उस पर ये शेड ऑफ होते हैं। यहाँ पर 3-सेल्ड स्टेज का मतलब है 2 मेल गैमेट्स और एक हमारी वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल हमने अभी भी पढ़ा है कि 2 मेल गैमेट्स बना लेती है, तो 2 मेल गैमेट्स ये और एक वेजिटेटिव सेल जब इस स्टेज पर पहुँचते हैं तब वो शेड ऑफ होते हैं 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर। मोस्टली तो 2-सेल्ड स्टेज पर ही शेड ऑफ हो जाते हैं, बट 40% ऑफ एंजियोस्पर्म जो हैं वो 3-सेल्ड स्टेज पर शेड ऑफ होते हैं। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ सेवर एलर्जिक और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ये सब बीमारियां भी जो है पोलन ग्रेन्स कॉज करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पोलन ग्रेन्स से एलर्जी होती है। वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, नथिंग बट एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है अनहार्मफुल एजेंट्स के ऊपर भी। तो पोलन ग्रेन्स से भी ये एलर्जी देखने को मिलती है।
नेक्स्ट ये कहता है वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वायबिलिटी का मतलब है जो जीवन क्षमता है, जीवन क्षमता, जो पोलन ग्रेन्स की जीवन क्षमता है या लाइफ टाइम है, जितनी देर तक या जितने टाइम पीरियड के लिए ये सरवाइव कर सकते हैं, वो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। ये न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं, यानी इनके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलते हैं और इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, टैबलेट्स की फॉर्म में या सिरप्स की फॉर्म में। Pollen grains of many species are stored for years in liquid nitrogen at 196 degrees Celsius. This is the main point कि जो pollen grains हैं, बहुत से species के pollen grains स्टोर किए जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाता है इन ऑर्डर टू यूज देम इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। और क्यों स्टोर किया जाता है? ताकि इन्हें हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकें।